Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to this evening Yog Vashisht study group. नमस्ते, मेरा नाम सोमेश्वर है। मैं आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के इस इवनिंग सत्र में स्वागत करता हूँ। आज अपना यह 20वां सत्र है। रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके आज के सत्र की हम लोग शुरुआत करते हैं। सो लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज। अपनी आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दें। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम 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 पुनः पुनः गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले। अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने बुद्धि में जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति पे तैयार होने वाले इंप्रेशंस यदि हो तो, अपने अंदर जागृत होने वाला अहंकार, अहम की भावना यदि अब भी थोड़ी बाकी है तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करें और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Jai Gurudev. So let's begin with today's session. Till now, we have been watching a science documentary called What the Bleep Do We Know? And we have been correlating the learning of that movie to what is been said in Yoga Vashishtha. So we have finished watching that. Yesterday, invited our special guest, Nakul Dhawanji.
And it was an excellent session yesterday we saw. So now let us go into more further details about this particular chapter called Utpatti Prakarana, means the creation of this entire universe. Now the topic which is very close to everybody's heart, the topic which is very curious. There are a lot of unknowns in it, and many of us have really been curious about how this entire world is actually created. And this is what is Vasishtha Muni is explaining us about what, how, why it is created. All those questions gets answered in this chapter. So let's begin. The first thing that Vasishtha Muni tells Rama that, look, I'm going to tell you something which is probably completely beyond your understanding till now about this entire universe. No, यही पे पहला bomb फोड़ते हैं. You just give him a shock. That he says that, look, this entire world, whatever you are saying right now, is actually not real. No, it is just an illusion in your mind. No, so whatever you see is actually not real. It's just like a dream. It's just like unreal world. Then what it is? No, so it is basically that whatever you are that Chaitanya Swarup, that consciousness. We call it by multiple name: Atma, Chaitanya, consciousness, blah blah blah. So many names we call that. So in reality, that is the one that exists. What that is, I don't know. No, I don't know that what that is, but we call it with different names. Just to address it, just for the sake of our understanding, we call it as Brahma, we call it as Shiva, we call it as Atma, consciousness, Chetana, etc., etc., etc. So how do one actually realize or experience this truth? So he says that Vasishtha Muni explained that as this is a very rational thinking, something which is completely beyond understanding of all the sanskaras, all the impressions that we have been carrying about this unreal world, as completely thinking it as real. And because of that only we got stuck into all these other things, get caught up in relationship, get entangled, get attached. Then all these other things, Kama, Krodha, Lobha, Mada, Moha, Matsara, all these things, greed, all these things comes into picture. Then all the desires comes into picture. Then all the emotions comes into picture. Something is good, something is bad. Some things are good deeds, some things are bad deeds. Then all the experiences of this Panchendriya, all the five senses that gives us, we also get caught up into the temporary pleasure given by all these five senses. Be it a sense of taste, or be it a sense of touch, be it a sense of hearing, be it a sense of sight. We think that whatever the pleasure that we are deriving out of these five senses is something real, and it is permanent in nature. But Vasishtha Muni is telling that, look, unless and until you are overcoming all these things, you are able to drop all such impressions that you have been carrying it along from long time, it will not be so easy to realize this truth that this entire world is unreal. So he says that what appears to be separate to you is actually not separate. It is just the one consciousness which manifests itself into multiple things, and it is its own imagination. It is just his kalpana. It is just his sankalpana that all these things has been created. So once this concept is clear to you, not just intellectually, it's not just going to happen just by saying, oh, not this, not this, not this, or neti, 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 or doing some other things, or doing some things, or relating something to your body, which is Nashivanta, this entire body itself is not real.
what you think it is real. Till that point up, then this is, you will not be able to attain this. No. So once you realize this truth, all the questions that pop up in our mind, that why this creation is there, why it is me, why mera hi bhagya aisa hai, why it always happens to me, why he said such and such thing to me only, all these things, why this creation, why this earth is there, and why then he created the demons also and the gods also, why these opposites do exist in the world. All such questions will disappear the moment you understand, oh, this is all just imaginary. Just like a dream. That is how Yoga Vasishtha starts telling Rama. Then he further explains that this mind itself takes the different akaras, the shapes, no? Vishayanchi akar git ratat. This is what is said here. No? So this mind itself is takes different shape in its own imaginary world, and it creates its own Brahman. No? So that is the reason he said that every being on this planet, they perceive in their own creation. No? So they perceive that, okay, there in my creation, there is this, there is this, there is this, there is this. It's just an imaginary world for that particular person as his own Brahman. No? Now there are two aspects of it. The one which is already created by something, that Brahman, or that consciousness, Shiva consciousness, or what we do not know, we call that as nothing. Whatever is created with that, that thing is there, and then we are perceiving it in our own way. Now, if somebody is talking and there are 5, 15, 17 people are listening to it, everybody will perceive the same thing as different, because they are having their own perception. They are having their own Brahman created. And now whatever they hear, whatever they see, they will perceive it depending upon what their Brahman is. They have their own creation in the mind. So they will experience it based on what their perception about the reality. Yeah. So he said, unless and until all this man, on this vritti, all this vishay, and this all this imagination, till that point of they exist, then it's very difficult to realize this. This drishya jagat, whatever this scenery, this visible scenery of this world is actually, there is no astitva, there is no existence of that. It is just imaginary. Then how does it happen? Then they give a example of a mirror here. So how that small mirror actually can encompass everything. If we just show the sun to it, it will just reflect sun. If you show the big mountains, it will start reflecting those big mountains in the pratibimba, jisko kehte hain, the mirror image of that. How does it actually can fit into all that small little mirror? It is just like that. This entire universe is actually can fit into your own that little mirror-like minute. So then he says that if you really want to go deeper into it, according to Vasishtha Muni, all these other things, whatever you go, you do Tirtha Yatra, you do this Pashana Samadhi, or you do Japa Tapadi, all this Sadhana Drisha, and all these things, this is not going to get removed because of that. Yeah, probably it will help you to clarify your thought process. It will probably help you to understand things in more detail. But in reality, just by doing this, it's not going to remove. Just by saying, oh, I am neti, I'm not this, I'm not this. Just by compatible, just by intellectual level, only intellectual level, if you want to try to do this, it is probably not going to help you much. So now it is explains that what that Chaitanya is. So here he gives a very beautiful example that the way there is an oil, sesame oil in the sesame, or if you take example of groundnut, there is that inherent oil is there. It is similarly there in this entire creation, that one consciousness is there. It is the same consciousness which is there everywhere. And
So just like if you are looking at any particular dream, the moment you are out of a dream, does that dream exist? Does the character or those things in that thing exist? No. But the experience of that is still is there. You can see the effect of that on your body also. So then question comes, what is real and what is unreal? And this is exactly the question that was done in the mind of Raja Janaka. Raja Janaka is a very wise man. But despite of that, when he experienced that in his court, this came to his mind, oh, what is real? What is unreal? And the people who are walking on this path of spirituality, the people who are seeking that mumukshatva, the people who are seeking that mukti moksha, in their mind also, this question definitely comes. Even the movie, if you see, there is a movie called Matrix. It is also based on Yoga Shishta, and there also, if you see that all these things who appears to be as a part of Matrix appears that they are doing something. In reality, they are just getting used just as a battery, human battery, to run the entire system, and the world is actually already overtaken by all the machines. So then there are some people who realize it. No? There is an oracle, and then there is the master has been shown, and there is another person called Neo. The one Neo, he has some belief that probably whatever I'm seeing is just not a reality. Huh? So he keep on searching for the answer, and somehow he meets this oracle. And then there is also another master who explains him that, look, this is what you see is not reality. If you want to get out of it, I can help you. There is also that Guru principle, that Guru Tattva has been shown. So then he helps him to come out of that, and finally he just wakes up and the tube bursts and all that fluid goes, and then he comes out of it, and then they come, and now they have created their own system to get into it. Just like a virus can enter into the system, now they can enter into the matrix and then do whatever they want to do, and they want to clean up all that thing, destroy that matrix. No? That is what has been said. Now here also it is very relevant that when we actually start wanting to understand and seeking this knowledge, then such kind of question comes, and this exactly is what is happening with Lord Rama also. Now he started asking this question. No, why is all these things? Why is like this? Why this earth is created like this? Why, no, all these things. They also ask, okay, if it is like Pancha Mahabhuta, then why all these things? All these things, questions, he keeps on asking. Now to explain this concept thoroughly, Vashishta Muni tells in the story of something called as Akashaj. So there is this Brahman who is continuing his daily routine, and then he does not get death. उनको मृत्यु नहीं आती है. So this Mrityu, whose job is to take away people's life, he goes and tries his best to take his life also, but he doesn't succeed in that. He happens to go to Lord Yama and then looks at this. He asks him what is happening. Then he says, go and find out his karma. Huh? If he has done any karma, then probably it's very easy for you to take away his prana. You'll be able to take his life along with you. He goes and searches everywhere in the entire Brahman, in entire universe. He doesn't find out his karma. There are no karma created for Akashaj. So because of that, he is not able to take his life, because if there are no karma, there are no impressions, there is no food for karma then. No? So he will remain as it eternal. No? So what is the significance of this Akashaj? So the significance of this Akashaj, we will now see in detail. I have created one, just a small little bit of graphic, which I have circulated it on a group also. So if at all something is not visible here, you can always pop in into your WhatsApp group and look at that image. For the benefit here, I am sharing the screen. Can you see the screen? Is it visible? Yes. Yeah. Yes. So let us look at it. What this significance of the story of Akashaj and how it fits into what Yoga Shishta is trying to explain us. How does this fit into the
creation of this entire universe. So Rishi Vashishta Muni says that there is something called as this space. Now I have written it as don't know. Do we know ourselves? We don't know. Because it's Adi, Anadi, Ananta, Nirakar. Now all these sagyas, all these things can be applied to this don't know. The one which does not have end, the one which is infinite in nature, the one which is beyond the logic of knowing, the one which does not have any shape, the Nirakar, the one which is Adi Anadi. We do not know the starting point of that, we do not know the end of that. And it is that Shiva Tattva, it is that Brahman, it is that Chetana, Atma, consciousness is whatever you refer to as. It is this, that particular thing, which we do not know what that is. Now that something, if you see this dotted line drawn here, it says that it thinks he is something, he or she or it is something. No, that mithya, that ahankara, that I am something, ki मैं exist करता हूँ, मैं हूँ, I exist. Because of all these things, he starts searching for the answer for koham. No, who am I? No, what is the purpose of my life? Why am I here? Like this, he starts saying koham, koham, who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Now to explain this, he creates something called as Akash. There is a space element here. No? That Akash comes into picture, and that Akash Swarup itself is that Akashach. Now, what are the karmas of Akash here? Nothing. There are no karma here at all. There is nothing. Now, Akash is created just to express that I am something, and now to express that I am something, now that Akash is created, that space is created. Space is just ether element, nothingness, no, just hollow and empty, nothing. Now to express it something in that Akash, obviously a shabda comes as to picture. To explain anything, the words has to come into picture. To words has to come into picture, obviously you should have the vowels and vyanjans, and to form the vowels and vyanjan, you need something called as sound. So the first sound after getting that ahankara, that I am something, and after creation of the space element, Akash, that Akash Swarup, the first thing that came into is a sound element. So it came in the Nad Brahmestu, Om, in the form of Om, that Dhvani created. Now using this Dhvani, then the letters get formed and then the Shabda get forms. So that is where the words get formed. Now from there, all this thing comes into picture. Now it carries the meaning. There is something called as energy, there is something called as life force, then there is something called as matter, then there is something called as mind, and all this drishya and maya comes into picture. So you can see here, there is energy, there is a life force, that is your prana, then there is a matter, this matter itself formulate when this consciousness gets into this matter, and this matter itself is a consciousness. If you go into deeper level and see the string theory, there is nothing called as matter. At the very sukshma level, the matter is also just a field of energy. Let us research in string theory. So this matter creates all this drishya maya, what we refer to as a body, sharir. No? So that this is one level of existence, that is your ahankara, ego, I am something. Then that is your life force, energy, prana, breath. Using this matter, this is drishya, sharir. No? All these things. And before that, then there is also a creation of a mind. All these things are just right after this, Akash and Om, Nar and Shabda. The first thing that is created is just this mind. Man. Mind bolne ke liye you require Dhvani and Shabda. So that is how this mind comes into picture. In that Ahankara now, it is created the mind. And it is the game of all this mind which started imagining all this matter using Drishya Maya, all this, out of that only created this Jiva, which we represent here, and out of that mind only it's created the Buddhi, to store all these things in the form of memory. The memory came into existence, all these things happen.
Now, as the mind is created, all the other things created, it also created something called as Vasana. The moment Vasana is come into picture, the karma came into picture, the kriya, the actions came into picture. All these things is referred to as avidya. जस्ट ज्ञान पे प्राप्त विद्या नहीं होती तो उसको बोलते अविद्या. ज्ञान के परे, जो ज्ञान तक हमें पहुंचने नहीं देती है. ज्ञान इज दिस, रियल थिंग इज दिस, द वन विच इज डज नॉट अलाउ अस टू रीच टू दिस is all this maya, all this drishya jagat which is unreal. No, it is because of this avidya. Then also it comes the viparaya. Then also it comes, there is something called as mal. No, इसमें मतलब आत्मा की हानि से उत्पन्न होता है. The one which is created of the self destruction. Then the mal comes into picture. Then all this maya comes into picture. Also to address this, prakriti comes into picture. They also speak about the concept of Virat, that I am the highest, no, larger than the largest, and all this avidya, that Brahm, no, that is comes into existence. Now to address this more, there also it explains the different words and concept here. Then this padarth, this matter comes into picture. Then there is also Narayana. Then there is a concept of Jiva. Then there is a concept of Brahma, Virata. And then there is also concept of this Ativahik. Ativahik means Sukshma. The one at the level of Ativahik, right up to this don't know. It creates things that I am something. And then it creates that Akashaj. And in that Akashaj, it creates this Om Na Shabda, and it creates this mind. The sharir, the body at the level of mind, that मनोमय शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, अतिवाहिक. एंड देन जो बाकी का जो दिखता है अपने को, दैट इज आदि भौतिक. नो, अतिवाहिक एंड आदि भौतिक. So the one, this jiva, that is adi bhautik. Then all this planet, sun, and all that you see, Milky Ways, and all this thing that comes under your creation of this pancha mahabhuta. So adi bhautik, all this. So it's all is imaginarily created in this mind. That is the reason says that this is all things whatever we see is just an unreal world. It is just an imagination of that consciousness. Then also they introduce the concept of kala, the time, then the desh, the sthan, then the vayu, all these things comes, then the fire, all these things comes into picture. So what is this satya, asatya, all this, nacha prakriti, no, परम का ध्यान न होने पर दृश्य जगत क्या होता है, अपने को रियल भासने लगता है. No, this is all these things are explained in this chapter. So इस तरह से हमें योग वशिष्ठ इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए समझाते हैं कि जो ब्रह्म है वो उसी से यह संसार बनाया हुआ है. उसी ब्रह्म को हम लोग ब्रह्म बोलते हैं, शिव बोलते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं. वो क्या है पूरी तरह से हम में से कोई नहीं जानता, एंड जानने की कोशिश भी करते तो जान नहीं पाते उसको. वो जस्ट उसका एक अनुभव मात्र हमें होने लगता है कि अरे यार कुछ तो ऐसा है कि जो नहीं बदलता. समथिंग इज देयर, समथिंग व्हिच डज नॉट चेंज, एंड इवन आई एम दैट, मैं भी उसी का स्वरूप हूँ. सो इस तरह से यहाँ पे उत्पत्ति प्रकरण के ऊपर वशिष्ठ मुनि यहाँ पे हमें बताते हैं. सो लेट अस आल्सो, हम लोग इसका थोड़ा हिंदी में भी अनुवाद कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा, तो फिर एक साथ इस दोनों स्टोरी को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे और चर्चा सत्र के लिए भी इसको ओपन कर देंगे. हमने यहाँ पे देखा कि प्रभु रामचंद्र जी का जो वैराग्य होता है उसके ऊपर फिर वो किस तरह से अपने वैराग्य का वर्णन करते हैं, कैसे सारे ऋषि मुनि वहां पे आके उनकी वैराग्य को सुनने के लिए आ जाते हैं. दूसरे प्रकरण में देखा कि कैसे मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण होना चाहिए. विश्वामित्र फिर वहां पे सुखदेव की कहानी बताते हैं और बोलते तुम्हारी जैसी स्थिति, उनकी भी वैसे ही स्थिति हो गई थी, लेकिन वहां पे वो अपने को सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति भी वहां पे पता चलती है. किसे सुखदेव विदेह मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन व्यास मुनि जो होते हैं वो सदेह मुक्ति मोक्ष का अनुभव करते हैं. माने यह शरीर रहता है तब भी हम लोग मुक्ति और मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं. देन हमने वो भी देखा कि किस तरह से अपना पुरुषार्थ अपनी जिंदगी में जरूर है.
ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये बहुत जरूरी है। फिर हमने मोक्ष के 4 द्वारपाल यहाँ पे देखे कि कैसे अपना श्रम, अपना विचार, और अपना श्रम, विचार, देन अपना साधु संगति, और चौथा क्या था अपना मोक्ष प्रकार था। चौथा इज श्रम, विचार, चौथा क्या था, कोई रिमाइंड कर सकता है? व्हाट वाज द फोर्थ? साधु संगति इज द लास्ट वन, या सो ये मोक्ष के 4 द्वारपाल ने हमें, हाँ संतोष, राइट, संजय जी बता रहे संतोष। तो संतोष, तो शम, विचार, संतोष, और अपना आखिरी वाला जो है वो साधु संगति। इस मोक्ष के 4 द्वार को हमने देखा कि कैसे जिंदगी में अपने इसको प्राप्त करने के लिए हमें इन मुमुक्ष के जो 4 द्वारपाल है उनकी जरूरत पड़ती है। देन उसके बाद में अपना यह पूरा का जो योग शिष्ट का जो प्रकरण है वो उत्पत्ति प्रकरण में आगे बढ़ता है। तो उत्पत्ति प्रकरण में फिर हमने देखा कि किस तरह से अपना ये क्रिएशन एग्जिस्टेंस में आता है, किस तरह से होता है। तो वशिष्ठ मुनि यहाँ पे पहली ही चीज बताते कि देखो ये सब कुछ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है यह रियल नहीं है, ये तो पहली बात तो जान लो, असत्य है। अब ये बहुत कठिन जाता है थोड़ा समझने के लिए, बिकॉज जो इस तरह के अपने ऊपर संस्कार हो चुके होते हैं उसमें से इसमें से निकलने के लिए यह बहुत एक शॉकिंग न्यूज की तरह हमारी तरफ यह सत्य आता है कि ये सब कुछ जो दिखते वो अपना जस्ट ड्रीम ही है। इट इज जस्ट अ ड्रीम इन अवर लाइफ, ये कोई सत्य नहीं है, असत्य है। तो फिर बोले फिर सत्य क्या है? सत्य वो है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, नो, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, शिव बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, उसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं, चेतना बोलते हैं। नो, वही अपना जो है वो सत्य है, नो, कभी बदलता नहीं है। नो, उसकी अपने फिर वो जो ये सृष्टि है, ये यूनिवर्स है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है यहाँ पे फिर वशिष्ठ मुनि इसके बारे में बताते हैं। तो बोलते क्यों डिफिकल्ट होता है इतना फिर ये समझना, ऐसा ये करना? तो बोलते तो आपके ऊपर जो गहरे जन्मों जन्मों से जो संस्कार हो चुके हैं, तो जो संचित कर्म है और जो अपना अभी प्राक्तन है, जो अभी के जो कर्म है, इसकी वजह से आपको यह जो लगता है कि बहुत रियल वर्ल्ड है, यह रियल एक्चुअली होता नहीं है। तो कैसे फिर इसको समझेंगे, इस रिलीजन को ड्रॉप कैसे करेंगे? तो बोलते हैं इसको सिर्फ वो अपना इसको ऐसे घोकम पट्टी करने से, या इसको जस्ट ऐसे अलग अलग प्रकार की तीर्थ यात्रा करने से, जप तप करने से, ऑल दिस अदर थिंग्स करने से उसे प्राप्त नहीं होगा। तो बोलते इसका सही सही ठीक से विचार करने से, इसको ठीक से समझने से, पूरी चीजों को एक ज्ञान की प्राप्ति से, आत्मज्ञान से ही यह संभव हो सकता है कि आप इसको जो जगत जो दिखा रहा है वो मिथ्या है। तो फिर इसको समझाने के लिए वशिष्ठ मुनि यहाँ पे आकाशज नाम के एक ब्राह्मण की कथा हमें यहाँ पे सुनाते हैं। तो जो आकाशज नाम का जो ब्राह्मण है वो उसका एक्चुअली उसका मृत्यु ही नहीं होता। तो जो अपने मृत्यु रहते हैं उनके पास जाते हैं और उनका मृत्यु हरने का कोशिश करते, प्राण लेने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। तो अपने जो यम है, डेथ लॉर्ड ऑफ डेथ, यम के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं महाराज मुझे कृपया मार्गदर्शन करें, मैं तो इनके प्राण हर ही नहीं पा रहा हूँ, कैसे मैं इनके प्राण हर लूं, आप कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। तो फिर उनको बोलते हैं कि जाओ उसके कर्म ढूंढो, यदि उनके कर्म है तो आप उनका प्राण ले पाओगे। तो जाते पूरे इधर सृष्टि में, ब्रह्मांड में इधर उधर घूमते हैं, उनके कर्म ढूंढते, तो आकाश का उनको कोई कर्म नहीं मिलता है। तो फिर जाके बताते हैं कैसा ऐसा, तो वो समझाते बोले यम और जो अपने मृत्यु है वो यम उनको समझाते, देखो किसी की भी अगर मृत्यु संभव होती है तो उन्हीं के कर्मों से ही होती है, उन्हीं की वासनाओं से ही वो नया जन्म लेते रहते हैं, मृत्यु पाते, फिर से नया जन्म लेते, फिर से मृत्यु पाते, ये विषय साइकिल उनका चलते रहता है। जिनके कर्म ही नहीं होते उनका तो मृत्यु भी संभव नहीं है। इस तरह से यह कहानी बताते हैं, यम उनको समझाते हैं मृत्यु को। तो ये दोनों के बीच का संवाद है जो वशिष्ठ मुनि यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि देखो इसकी वजह से ये सब होता है। तो देन थोड़ा और एक्सप्लेन करते कि अगर आकाश का कोई कर्म ही नहीं है तो फिर उसकी मृत्यु भी कैसे संभव होगी। सो इसको समझाने के लिए फिर वो आगे अपनी उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। तो इस उत्पत्ति को समझाने के लिए थोड़ा छोटा सा आपने डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम
तो इस तरह से इसको यहाँ पे समझाया गया है कि जो एक अपना जो एक स्पेस है ना, दैट समथिंग, कि हम लोग उसको आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, शिव कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, अलग अलग नाम से हम उसको पुकारते हैं। लेकिन हमें क्या है वो हमें पता नहीं है। कोई नहीं जानता उसको, जो जानता है वो बताता नहीं है, और जो बता रहे हैं उसको वो जानता नहीं, उससे सुनो, और ही डजंट नो। इसी को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई जानने की चीज नहीं है, जानने के परे है, इनफाइनाइट है, अनंत है, आदि है, अनादि है, निराकार है ना। अलग अलग इसके इस तरह से सब क्या की है ना, हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते, किसी लिमिटेड इसमें इसको बांध नहीं सकते, वो है। तो इसको क्या होता है, एक दिन ऐसे ही क्यों होता है, कोई उसका कारण नहीं है, एक दिन ऐसे ही उनको भ्रम उत्पन्न हो जाता है मन में कि मैं कोई तो हूँ, मिथ्या, मैं कुछ तो हूँ। और जो कुछ तो जो है वो यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, वो ढूंढने लगता है उसका आंसर कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, को हम करके ढूंढने लगता है कि अरे मैं क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, क्या है मेरे जीवन का अर्थ, क्या है मेरे जीवन का पर्पस, क्या है, इस तरह से कौन हूँ करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो जो मिथ्या होता है वही फिर अपने को कुछ तो एक्सप्रेस करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो एक्सप्रेस करने के लिए अपना एक जस्ट एक स्पेस बना लेते हैं, ईथर एलिमेंट, आकाश। इसी बोलते ये आकाशज जो है ना, ये आकाशज भी उस आकाश का जो है उसी का एक स्वरूप है। एक स्पेस चाहिए ना कुछ तो एक्सप्रेस करने के लिए, तो कुछ बताने के लिए, कुछ रखने के लिए, तो ये बोलते हैं आकाशज उसी का। तो बोलते हैं उस लेवल पे जो होता है आकाशज का, जो ब्रह्म का जो स्वरूप उस लेवल पे होता है, शिव का जो स्वरूप उस लेवल पे होता है। शिव वाले इवन आकाश के भी परे, जो डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट दैट इज, लेकिन ये आकाश तक स्पेस एलिमेंट के बारे में उनको वहां पे रिप्रेजेंट। तो बोलते वहां पे क्या कर्म रहते हैं ना, वहां पे कोई कर्म रहते हैं किसी के ना, कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है ना, नथिंग एग्जिस्ट है, तो फिर उनके कोई कर्म ही नहीं है, तो उसका मृत्यु कैसे? आकाश का कोई मृत्यु होता है क्या? आकाश का कोई मृत्यु नहीं, इसलिए उसकी प्राण हर नहीं पा रहे हो। इस तरह से वे बताते हैं। लेकिन अभी ये जो आकाश जो क्रिएट किया जाता है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो शिव स्वरूप है, जिसको हम लोग जानते नहीं, उनको जो मिथ्या अहंकार होता है, उनको अभी अपने आप को एक्सप्रेस तो करना है ना, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए तो वो आकाश की निर्मित करती है। और फिर कैसे करे, तो शब्द की जरूरत पड़ेगी, कुछ बताने के लिए, कुछ ये पृथ्वी है या सूर्य है, कुछ भी बताने के लिए शब्द की तो जरूरत पड़ेगी। तो शब्द बनाने के लिए फिर उसमें स्वर लगेंगे रहेंगे, तो स्वर के लिए फिर पहले नाद लगेगा, तो पहले उसके बाद में इमीडिएटली ध्वनि की उत्पत्ति होती है। आकाश में एक ध्वनि का निर्माण होता है, और ध्वनि उसी को फिर ओम कहा गया है। इसलिए बोलते ओम इज आदि अनादि ना, बिल्कुल क्रिएशन के स्टार्टिंग से जो कुछ साउंड निकला वही ओम है। तो उस ओम की उत्पत्ति होती है, ओम की उत्पन्न से फिर अक्षर होते हैं, अक्षर की उत्पन्न से फिर शब्द होते हैं, एंड देन फिर वो शब्द सारे फिर ये चीज पिक्चर में आती है कि आपकी एनर्जी, लाइफ फोर्स ना, योर प्राणा, योर ब्रेथ, ऑल दिस थिंग। तो मैटर को भी फिर दृश्य जगत में माया शरीर बनाने के लिए मैटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो एनर्जी के फॉर्म में ही होता है। नो, ये सिर्फ दृश्य जगत जो माया है, शरीर क्रिएट हो जाता है, उसी से फिर तुम्हारा ये जो है मन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे पहले मन, और मन ही मन में ये सारी चीजों को लेके वो अपने आप को एक एक पर्टिकुलर रूप में देखने लगता है, इमेजिन करने लगता है। उसी से फिर वो जीव भी हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी से फिर कुछ करने के लिए अमुक है, तमुक है, ऐसा कुछ है, ये है, उसके लिए बुद्धि का निर्माण हो जाता है। उसको स्टोर करने के लिए सारे शब्दों के लिए स्मृति का निर्माण हो जाता है। नो, ऑल दिस लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस स्टार्ट गेटिंग क्रिएटेड। नो, फिर ये जो जीव की बात आती है, तो जीव में फिर वही आ जाता है, सारी वासनाएं आ जाती है, सारे कर्म और क्रियाएं आ जाती है, और ये जो अविद्या आ जाती है वो आ जाती है कि ये सारा जो है ब्रह्मांड है, ये सच है ऐसा लगने लगता है, वो अविद्या। देन उसके फिर वो आत्मा की जब हानि होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सोल होता है, तो फिर वो मल भी वहां पे उत्पन्न हो जाता है। देन क्रिया ही स्वभाव और फल के रूप में की ओर दौड़ने लगता है, उसके जो क्रियाओं का जो फल है उसके पीछे इंसान दौड़ने लगता है, वासना डिजायर्स वगैरह आ जाती है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया। देन बोलते ये सब कुछ में उलझ जाता है इंसान, फिर माया आती है, फिर ये प्रकृति आती है, उसका विराट स्वरूप आता है, ये सारा जो भ्रम उत्पन्न होता है, इसी को यहाँ पे अविद्या कहा गया है। फिर और आगे चल के फिर पदार्थ के बारे में बात करते हैं, नारायण के बारे में बात करते हैं, जीव के बारे में बात करते हैं, ब्रह्म के बारे में बात करते हैं, विराट के बारे में बात करते हैं,
फिर अतिवाहिक और आदि भौतिक, ये दोनों भी चीजें यहाँ पे बताया गया। तो ये जो आकाश का जो स्वरूप है यहाँ पे, नो, ये जो मन का जो स्वरूप होता है, सूक्ष्म शरीर जो होता है, उसको अतिवाहिक ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है। उसके ना कुछ कर्म होते हैं ना कुछ होते हैं, तो नथिंग, वो कुछ भी नहीं होता अतिवाहिक। अन्य बोल रहे हम लोग जो देखते हैं, पृथ्वी देखे, सूर्य देखे, हम लोग खुद जीव है, वो आदि भौतिक, मतलब पंच महाभूतों से बना हुआ वो आदि भौतिक शरीर, नो, तो उसको आदि भौतिक बोलते हैं। जो सूक्ष्म होता है उसको अतिवाहिक बोलते हैं। बोलते हैं वो मनोरूप से, मन देह से वो ट्रैवल करते हैं ना, अतिवाहिक शरीर उसको बोला जाता है। फिर उसके बाद में फिर ये इंद्रिय पिक्चर में आते हैं। देन कंसेप्ट ऑफ काल, देश, वायु, नो, ये सभी का सारी चीजें यहाँ पे आते हैं। वो सत्य और असत्य की ये भी यहाँ पे फिर वो उजागर करते हैं। परम का ध्यान हट जाने से ये सब मिथ्या, ये सब मन का खेल है, माइंड का क्रिएशन, इस रूप में यहाँ पे अपने क्रिएशन को बताया गया है। ये तो गया उसका एक स्वरूप। अभी इसका रिलेवेंस क्या है अपनी जीवन में, ये सब कुछ जान लिया सपोज, या अभी सुन लिया और थोड़ा समझने का भी प्रयत्न किया, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इन आवर रूटीन लाइफ? कैसे हम लोग जीवन में इसको अप्लाई करके जो भी अपने जो बाकी के जो भ्रम है, जो बाकी के जो अपने सुख दुख या अपने जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर है, जो शंड्रिपने में बांध के रखा है, जिन चीजों को हम लोग बंधन समझते हैं, इसको कैसे तोड़ा जाए, इसके बारे में हम लोग चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे ना। ये तो हो गया साइंस के रूप में, प्योर साइंस के रूप में इसको देखिए कि ये ज्ञान आ गया। अब इसको अप्लाइड साइंस कैसे बनाना है, इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे उतारना, कैसे ये हमें हेल्प करता है, इसकी चर्चा हम लोग कल जारी रखेंगे। नाउ दिस इज योर टाइम, ओवर टू यू ऑल। आपके मन में कुछ व्यक्त होने का मन कर रहा है या कुछ प्रश्न पूछने का मन कर रहा है तो जरूर आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इफ यू फील लाइक एक्सप्रेसिंग, आप वो भी कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। अनम्यूट का ऑप्शन में खोल देता हूँ, आप खुद ही अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ, जय गुरुदेव, बोलिए। मला द्रष्टा आणि दृश्य याचं थोडस कन्फ्युजन आहे. म्हणजे आपण जो विचार करतो ते मनातलं दृश्य ते द्रष्टाला दिसतं म्हणून ते जग असं का? त्याचा अर्थ थोडासा कळला. द्रष्टा आणि दृश्य. चालेल, बघूया थोडं डिटेल मध्ये की एक्चुअली तीन है। एक तो होता है दृष्टा जो देखता है, दूसरा होता है दृश्य जो दिखता है, और जो देखने की प्रक्रिया होती है उसे दर्शन कहा गया ना। तो दृष्टा हो गया, दर्शन हो गया एंड दृश्य हो गया। अभी तीनों चीजों को अलग अलग लेवल पे हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे देखते हैं तो समझने में जल्दी हो जाए। देन हम लोग अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज करते जाएंगे और इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखते जाएंगे। तो सबसे पहला ग्रास रूट लेवल पे अपनी आंखें हैं, आईज आर देयर, वेरी ऑब्वियस और इंद्रिय, वेरी ग्रास रूट लेवल पे देखते हैं। अभी ये जो आंखें हैं उसके सामने मैंने दिख रहा है, अभी मेरे सामने ये लाइट है, ये है, मैं आपको अभी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। ये क्या है मेरे लिए? सीनरी हो गया, माने क्या हो गया? दृश्य हो गया। कौन देख रहा है? मेरी आंखें। एंड देन जो ये देखने की प्रोसेस है, दर्शन हो गया। यहाँ तक बात समझ में आती है, राइट? यस। तो मेरी आंखें है, दर्शन हो रहा है, दर्शन बोलते हैं ना, दर्शन दृश्य है, जिस दृश्य का दर्शन कर रहा हूँ। तो वेरी क्लियर, बिकॉज इट्स वेरी ऑन द ग्रास रूट लेवल। नाउ इसको देखो थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जाते हैं। इस जो आपका क्या कर देते हैं, जो दृष्टा हम लोग जो आंखें बोली, हाँ, उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देते थोड़ा। क्या ये आंखें दिख रही है? क्या कैमरा दिखता है? क्या नहीं, कैमरा माध्यम, कैमरा जस्ट माध्यम है। वेरी गुड। सो अभी देखो रेफरेंस चेंज हो गया। पहले बोल रहे थे कि आंखें देखती है, आंखें देख रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा और ज्ञान मिल गया, थोड़ा सा और उसके ऊपर अंदर गहराई में गए तो अभी रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। अभी रेफरेंस पॉइंट कौन हो गया कि आंखें नहीं देख रही है, आंखें तो मात्र एक कैमरा है, नो, जस्ट एक लेंस।
ये थोड़ी है ना, देखो आंखों के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उससे जो वहां पे जो प्रकाश किरण अंदर जाते हैं उसका जो सिग्नल आगे चल के प्रोसेस होता है ब्रेन में, और वहां पे फिर एक मन करके कुछ चीज, फिजिकल चीज नहीं है, मन। तो मन आपका देख रहा है, तो कौन दृष्टा कौन बन गया अभी? मन दृष्टा बन गया। दृश्य जो दिख रहा है वो बाहर का जो एक्सटर्नल दृश्य है, आपकी आंखें खुली है, वो दृश्य बन गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दर्शन बोलते हैं। तो ये भी सब में आई। तो अभी भी अपनी आंखें खुली है। अभी क्या करते हैं? आंखों को बंद कर लेते हैं। तो अभी क्या हो गया? आंखों को बंद कर लिया, लेकिन अभी भी आंखों को बंद करके भी मैं शलाका को देख रहा हूँ। वो वही चल रहा है, जूम है, वो स्क्रीन है, एंड मेरे अंदर वो देख रहा हूँ मैं, क्या मैं बोल रहा हूँ। मेरे सामने शलाका जी है जो मुझे प्रश्न पूछ रही है, और मुझे सब दृश्य वैसे के वैसे ही दिख रहा है। थोड़ा करेक्ट. आंखें, म्हणजे इथे एक वाक्य की तुझ्या अंतःकरण दृश्य हे अंतःकरणातलं जे दृश्य तेच सत्य आहे. ते पण सत्य नाही आहे ऍक्च्युली, ते पण इमॅजिनेरीच आहे, पण ते पण मिथ्याच आहे. पण कसं बघूया आता, कसं प्रेफरन्स बदलत जातो. आता इथे मन झालं, तुमचं सिनरी झाली, तर तुमचं सिनरी सुद्धा काय झाली आता? इमॅजिनरी झाली, काल्पनिक. जसं आपण स्वप्न, द्रष्टा मन झालं आणि स्वप्न बघतंय आणि दृश्य जे दिसतंय ते पण काल्पनिक आहे. आतापर्यंत आपण बहिर्मुख होतो, याला जगतातलं दृश्याला दृश्य म्हणत होतो, सिनरी म्हणत होतो. ती सिनरी चेंज झाली, नाउ यू हॅव इनटू ड्रीम एंड योर माइंड इज सीइंग द ड्रीम एंड प्रक्रिया भी घड़ रही है. हाँ ठीक है. और इसका रेफरेंस पॉइंट देखते, क्या मन दृष्टा है क्या? सिर्फ मन दृष्टा है क्या? हम लोग सिर्फ मन है क्या? नहीं, हम लोग सिर्फ मन नहीं है. माने मन के बारे भी कोई बोलता है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये मेरा मन बोलता है. किसका मन है? मेरा मन. कौन बोल, मेरा मन कौन बोला है? माने इस मन के भी प्रति कोई दृष्टा है. तो और रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाता है. अभी हम लोग क्या देखते हैं? आंखें बंद कर लो, सराउंडिंग के ऊपर ध्यान दो, फिर शरीर के ऊपर आ जाओ, शरीर के इधर उधर पार्ट्स में देखो, तो शरीर दृष्ट बन गया. आपका जो मन है वो देखने वाला, उसको शरीर को दृष्टा बन गया. फिर क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट और चेंज हो जाता है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. बोलते हैं अभी मन में जो चल रहे विचार देखो, माने मन क्या हो गया? दृश्य बन गया. दृष्टा, दृष्टा कोई और बन गया, मन भी दृश्य बन गया. मन में आपको विचार देख रहे हो, तो मन भी आपका दृश्य बन गया, और देखने वाला कोई और. देन थोड़ा ओ भी हो जाता है, उसको भी ड्रॉप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. बोलते देखो अपनी भावनाओं को देखो, अपनी भावनाओं को एक्सपीरियंस करो, अपनी इमोशंस को. मान भी दृश्य का आप गया, मनोमय था वो मन भी, मनोमय से भी निकले, विज्ञानमय स्वरूप में आ गए. नो, लोग जस्ट भावनाएं, वहां पे कोई थॉट्स नहीं, कुछ नहीं है, जस्ट भावनाएं हैं. तो वो भावनाओं लगे, तो वो दृश्य बन गया, देखने वाला कहीं और. हाँ, और फिर उसके बाद जो तुम दृश्य है और जो दृष्टा है वो अलग अलग नहीं है. दृश्य, दृष्टा ही दृश्य में सब जगह पे स्थित है. तो दृश्य का विलय हो जाता है दृष्टा में. फिर क्या होता है? ब्लिस, आनंदमय कोश, ब्लिस में. यही तो करते हैं पंचकोशा मेडिटेशन में. तो ये इस तरह करनी होता है, दृश्य का, दर्शन का और दृष्टा का. तो उससे दृष्टा, तो उसको जो मूवी में बोला ना, उसको फिर अल्टीमेट ऑब्जर्वर बोला गया. अल्टीमेट ऑब्जर्वर माने क्या? द वन हु क्रिएटेड दिस, द वन हु इज एक्चुअली ऑब्जर्विंग दिस, बिकॉज उसी के कल्पना के कारण ये सब कुछ घटित हो रहा है. उसी को भ्रम उत्पन्न हो गया कि मैं कुछ तो हूँ, और वो अभी अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए ही जस्ट क्रिएटेड ऑल दिस थिंग. फॉर व्हाट? नो रीजन. देयर इज नो रीजन. नो, तो फिर ये मन में आते हैं प्रश्न कि ये मेरे को ऐसा क्यों बोलता है, वो ऐसा क्यों बोलता है, ये क्यों उत्पन्न है, कि फिर वो उन्होंने वो सत्य को भी क्यों क्रिएट किया, असत्य को भी क्यों क्रिएट किया, पॉजिटिविटी तो क्यों क्रिएट किया, निगेटिविटी को क्यों किया. कुछ भी रीजन नहीं है. देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट. इट इज जस्ट अ गेम दैट इज हैपनिंग. जैसे उनका ड्रीम खत्म हो जाता है, वी ऑल डिसअपियर. एक क्षण में ऐसे कल्प हो जाता है, वो लय हो जाता है, फिर से वो उसको कभी तो और एक बार भ्रम होता है, फिर से वो पूरी सृष्टि को उत्पन्न कर देता है. ऐसे ही काल्पनिक, इस तरह से यहाँ पे बताया गया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जय गुरु. जय गुरु. हाँ, तो
अब यदि मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, यदि आप पे आपको व्यक्त होना चाहते तो दो भी कर सकते, एनीथिंग इज फाइन, एनीथिंग इज फाइन। हाँ अनगा जी, मीनाक्षी जी कुछ कहना चाहते हैं आप? अनम्यूट का ऑप्शन खुला है, आप खुद ही अनम्यूट कर सकते हेलो हैं। हाँ मीनाक्षी जी बोलिए। गुरुदेव सर, हम कुछ बोलेंगे तो आप हंस भी सकते हैं। मीनाक्षी जी आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, सुनिए, चैट में टाइप कर सकते हैं क्या? हाँ बोलिए। सर हंसिएगा नहीं सर, मतलब सर आप जो बोल रहे हैं जितना भी सर कहानी सुना रहे हैं वो सब लोग बस किसी की बुक नहीं है, हाँ कुछ जी, ये मालूम नहीं ना। हाँ ये जो आकाशच की जो कहानी यहाँ पे बताई ना, और ये सारा भी ज्ञान बता रहा है ना, ये सब योग वशिष्ठ का ही ज्ञान है। हम लोग यहाँ पे जैसे एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपके सामने बैठे हुए और उसको बस ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। ये सारा ज्ञान योग वशिष्ठ का ही है। ठीक। हाँ हाँ संगीता जी बोलिए। Yeah, hello, Jai Gurudev. Good evening to all of you. And it was really very deep, I tell you. I don't feel like talking coming out of it. It's beautifully explained by you, Someshwarji. And we could see how world is like an illusion. And the map which you showed was also very nice. You could understand everything in that. So there are the different aspects we go on looking into. देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, चलते जाएंगे. So I think so it is going to be a beautiful journey. That is what it is, Yog Vasisht, right? And the more we come near to our own self, it is again unfolding like a flower. So let's keep on doing it, I think. So let's keep on, let it happen. It is like a process. So it is going on happening. So that beautiful flower is unfolding, and to realize the truth, that is the main thing. That is what is Yog Vasisht, right? So going beyond all your impressions, all your sanskaras, and of course, जैसे अभी आपने कहा कि मन को, दृश्य करके देखते हैं, पहले शरीर को देखते हैं, फिर मन को देखते हैं, फिर और भीतर जाते हैं, फिर अपने भावनाओं को देखते हैं. So we go on experiencing all that, and that will take us to our own self. That is the Brahman that we have to experience. And the one who experiences doesn't say anything. And the one who says doesn't know anything. So it's such a thing, no? So better to be in silence, I think so. Today I would really love that. Just to be with the experience. That is the thing. Actually, the mind is not working. It's gone into the no mind, What we heard from Nakulji yesterday, it's actually from yesterday. I am in that no mind, Really. So it's a place then. Of course, I feel so. So I just end here. Okay. Thank you. Thank you so much Sangeeta ji. Sachin ji would like to say a few words, whatever you want to want. बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का. वही आपने बहुत ही अच्छा तरीके से वो पेपर डायग्राम वगैरह सब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया. मुझे आज कुछ बोलना नहीं है. जस्ट वांट टू लिसन. श्रावण महीना है तो श्रवण ज्यादा करना चाहिए, ऐसा मुझे. बहुत बढ़िया है एनालॉजी. श्रावण महीना तो श्रवण करो. हाँ ठीक है, ठीक है. फिर किसी को कुछ कहना है अपने आप को अनम्यूट कर ले और आप बात कर सकते हैं. संजय जी, शामली जी, अनगा जी, कुछ बोलना है तो बोलिए, कुछ पूछना है तो. पंचकोशीय ध्यान है ना, ते एक मेडिटेशन आहे का कोर्स आहे? पंचकोशा मेडिटेशन आहे ना, आपण गुरुदेव घेतात ना नेहमी. अच्छा.
चा कोर्स मध्ये हॅपीनेस प्रोग्राम मध्ये पहिलं मेडिटेशन जे होतं ना ते नाही, मी जुना केलंय. सुदर्शन क्रिया आम्ही खूप पूर्वी केलंय, त्यामुळे ते हॅपीनेस मधलं मला माहित नाही ध्यान. ते आपण एखाद्या वेळेस पंचकोश मेडिटेशन करूया. थँक्यू. चालेल. पंचकोश मेडिटेशन में क्या क्या आता है? पंचकोशा में जो हम लोग बाहर का जो दिखते हैं ना, सराउंडिंग जो देखते हैं, तो वो आता है अपना अन्नमय कोशा. देन हम लोग वहां से निकलते हैं, फिर अपने शरीर के ऊपर ध्यान लेके आते हैं. तो प्राण यहाँ पे ना बसता है ना, इसलिए इसको प्राणमय कोशा कहा गया. प्राण है इस, जब तक प्राण में है तब तक शरीर की कीमत नहीं, तो शरीर गया. ब्रेथ फ्लोज इन देयर, दैट्स अ प्राणमय कोशा. देन यहाँ से निकलते हैं, फिर किस में जाते हैं? विचारों में, मनोमय कोशा. तो मन के लेवल पे जो अतिवाहिक इसकी बात हुई, सूक्ष्म शरीर की बात हुई, मनोमय कोशा. देन उसके बाद में वहां से निकलते हैं विज्ञानमय कोशा ना, तो वहां पे भावनाओं की जगत में हम लोग हो जाते हैं, वहां पे जस्ट देखते हैं भावनाओं को. एंड देन आखिरी जो बोला है वो आनंदमय कोशा, ब्लिस. देयर इज नथिंग, यू आर लव, यू आर पीस, यू आर जॉय. No, these are the 5 koshas they said. No, so to go into deeper level of kosha, you have to keep on dropping. Dropping भी बोलो या accepting at least. Drop करना थोड़ा difficult जाता है, accept करना थोड़ा आसान जाता है. We have seen ना, acceptance is easier than rejection. Acceptance is easier than dropping. तो accept कर लो उसको, सब accept करते हो तो अपने आप drop हो जाता है, bother नहीं करता है. So ऐसे वो accept करते करते सारे कोशा को हम लोग जाते, तो then we experience the deeper kosha, that is the आनंदमय कोशा. ये करेंगे हम लोग, ध्यान तो करते हैं, कई बार कर चुके हैं, गुरुदेव खुद करवा चुके हैं इसको, तो गुरुदेव की आवाज में एक बार हम लोग पंचकोशा ध्यान सब लोग मिलके करेंगे. ठीक है, फिर आज का यह सेशन हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं, समाप्त नहीं करते हैं. विल जस्ट टेक अ स्वल्प विराम, पॉज करते हैं ताकि पुनः एक बार हम लोग कल मिल सके. जय गुरुदेव.